I have two examples to show some type of changes. Rusting of iron and freezing of water. Can you differentiate what type of changes these are? And what is a chemical equation? How a chemical equation can be balanced and why it is necessary? Welcome learners. To know the answer of these questions, today we'll discuss about these topics under the chapter's name Chemical Reactions and Equation of Class 10. So, first of all we'll talk about what are chemical changes and what are physical changes and how they can be differentiated. Chemical changes. In case of chemical changes, there will be formation of new substance and there will be change in molecular composition. But in case of physical changes, there will be no such formation of new substance and there will be no change in molecular composition. You can take examples. केमिकल चेंजेस जिन्हें हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं और उनके उदाहरण है हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन. शुरू में जो आपने आयरन लिया दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल Fe, लेकिन जब रस्टिंग होने से रस्ट बन जाएगा इट विल शो द फॉर्मूला Fe2O3.2H2O. So before happening this reaction we have Fe as iron, but iron when get attacked by oxygen and moisture it will form rust having formula Fe2O3.2H2O. Can you think both these substances are same or not? These are not same. वो Fe है और ये आपका Fe2O3.2H2O है. तो कहने का मतलब आयरन की जो कंपोजिशन है वो बदल चुकी है और एक नया प्रोडक्ट हमारे सामने, एक नया सब्सटेंस हमारे सामने आ चुका है जो कि रस्ट है. तो अगर किसी चेंज के दौरान कोई नया सब्सटेंस हमारे पास बन के आता है और जो शुरू में हमने लिया था उसकी कंपोजिशन बदल जाती है, सच टाइप ऑफ चेंजेस आर नोन एज chemical changes. We can also take example of fermentation of grapes, digestion of food. These are also example of chemical changes. But if we take example of physical changes, freezing of water and boiling of water, these are physical changes. Before freezing, water is what? That is H2O and it is showing hydrogen and oxygen in its composition. But after conversion of this water into ice, means after freezing, it will form ice but having the same formula H2O. Composition is same, made up of hydrogen and oxygen. जो स्टार्टिंग में आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिला हुआ पानी लिया हुआ था जिसका फॉर्मूला H2 था, आइस बनने पे भी उसका फॉर्मूला H2 ही रहा और उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही बने रहे. कहने का मतलब आपका सब्सटेंस वैसा का वैसा रहा और उसकी कंपोजिशन में भी कोई फर्क नहीं आया, कंपोजिशन में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही देखने को मिल रहे हैं. इसी तरह से आप बॉइलिंग ऑफ वाटर का एग्जांपल लेते हो. बॉइलिंग ऑफ वाटर इज आल्सो फिजिकल चेंज बिकॉज बिफोर बॉइलिंग वाटर वाज H2 एंड आफ्टर boiling this water get converted into steam and steam having the same formula H2O. So these are physical changes. तो कहने का मतलब जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसमें कोई नया सब्सटेंस, नया पदार्थ बन के आता है और उसकी संरचना में बदलाव आता है. लेकिन जो आपके भौतिक परिवर्तन होते हैं उनके अंदर आपका कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है और उसकी संरचना में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है. So these are the differences between physical and chemical changes. Now next topic is about how to write a chemical equation. But before doing that, we should remember a chemical reaction. What is a chemical reaction? A chemical reaction is we can say chemical reaction is a process which is showing some substance are going converted into other substances. और जो आपके लिए जाने वो रिएक्टेंट्स हैं बिफोर कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन. दीज आर आवर रिएक्टेंट्स
and after completion of this chemical reaction we will have products. किसी रिएक्शन के दौरान उससे पहले जो हम लेते हैं वो आपके रिएक्टेंट्स कहलाते हैं, और जो रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो आपके प्रोडक्ट्स बनते हैं. एक केमिकल रिएक्शन ऑलवेज शो चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन फिजिकल स्टेट और इवोल्यूशन ऑफ गैस. कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो इन चारों कंडीशन में कोई भी चीज दिखा सकती है. या तो उसकी स्टेट में चेंज आएगा, कहने का मतलब जो आपका रिएक्टेंट शुरू में ले रखा होगा आपने वो आपका किसी और स्टेट में, मान लीजिए सॉलिड में, लिक्विड में, और प्रोडक्ट आपका बन गया वो गैस में बन गया. तो फिजिकल स्टेट में चेंज आ सकता है या उसके कलर में चेंज आ सकता है. जो शुरू में लिया था उसका कलर अलग था और बाद में जो बन गया उसका कलर अलग हो गया. इट कैन शो चेंज इन टेम्परेचर. शुरू में वो आपका इतना गर्म नहीं था, बाद में वो गर्म हो गया. टेम्परेचर का भी चेंज आ सकता है. लास्ट वन इवोल्यूशन ऑफ गैस. आप गैस निकालते हो भी देखते हो काफी सारी रिएक्शन में. जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है. आई हैव सल्फ्यूरिक एसिड इन दिस बीकर. सल्फ्यूरिक एसिड विच इज नोन एज किंग ऑफ केमिकल्स. नाउ आई एम एडिंग सम जिंक ग्रैन्युल्स इन दिस सल्फ्यूरिक एसिड. इसके अंदर मैं जिंक ग्रैन्युल डाल रहा हूं. उसमें कुछ मैंने आपको पहले ही डाले हुए हैं. आई एम एडिंग अनदर जिंक ग्रैन्युल. When we add zinc in sulfuric acid, there will be release of H2 हाइड्रोजन गैस. हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज होते हुए हमें नजर आएगी, और ये गैस रिलीज हो रही है. इसको हम अपवर्ड एरो के साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि गैस रिलीज हो रही है. तो इसके अंदर ऐसा करने से आप देख सकते हो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है. ये जो बबल्स बन रहे हैं और यहां से बबल्स अराइज हो रहे हैं, दैट इज ड्यू टू रिलीज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. So we can say a chemical reaction can show either of these condition: change in state, change in color, change in temperature और evolution of gas. किसी भी तरह का चेंज दिखा सकता है या सारे चेंज दिखाए जा सकते हैं. Now we'll move to how to write a chemical equation. A chemical equation can be written as, when we have asked, when magnesium is burned in presence of oxygen, it is forming magnesium oxide. So it as word equation. इसको आप दिखाइए, वर्ड इक्वेशन बना के दिखाइए. Then you will write magnesium plus oxygen arrow magnesium oxide. This is our word equation. Now we want to make it more easiest way, and that is what? Formula equation, chemical formula equation. We will give the symbols. For magnesium, Mg, and for oxygen gas, that is O2. And for magnesium oxide, that is MgO. Chemical formula of magnesium oxide is MgO. We have already talked about in our 9th class. That is Mg having the valency 2, oxygen having the valency 2. It will form Mg2O2. It means it is MgO. तो magnesium oxide का formula क्या बनेगा? MgO. ये इसका formula बनेगा. अभी इसको बैलेंस करके दिखाया आपको. How it can be balanced? इसको बैलेंस कैसे किया जाएगा? नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन. इस इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है? अगर आप यही इक्वेशन लेते हो तो इसको बैलेंस कैसे किया जाता है? बट बिफोर डूइंग दैट वी विल हैव वन क्वेश्चन. मैग्नीशियम आफ्टर बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड विद ए व्हाइट डैजलिंग फ्लेम. जब भी मैग्नीशियम के रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है तो व्हाइट डैजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस होती है. But before burning, why cleaning of magnesium ribbon is required? आपको मैग्नीशियम रिबन को बर्निंग करने से पहले साफ करना क्यों पड़ता है? This is our question in our question bank. Why should a magnesium ribbon is cleaned before burning in air? Remember, magnesium is reactive metal. It is reactive metal, so it can get attacked by oxygen. ये किसकी वजह से? एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है या दूसरी गैस है उसके साथ ये रिएक्ट कर सकता है, बिकॉज इट इज हाईली रिएक्टिव मेटल. एंड आफ्टर रिएक्शन विद ऑक्सीजन इट विल फॉर्म ऑक्साइड लेयर ऑल अराउंड इट. और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने के बाद ये अपने चारों ऑक्साइड की लेयर बना लेगा. सो एज टू रिमूव ऑक्साइड लेयर वी विल क्लीन इट. ऑक्साइड लेयर को हटाने के लिए हम मैग्नीशियम रिबन को पहले साफ करते हैं, क्योंकि अगर हमने ऑक्साइड की लेयर को हटाया नहीं तो मैग्नीशियम रिबन जलेगा नहीं. सो दैट इज आंसर टू
remove oxide layer and which is formed due to reaction of oxygen with reactive magnesium। जो कि मैग्नीशियम रिएक्टिव मेटल था उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर गया और इसलिए ऑक्साइड की लेयर बना दी और उसको हटाना हमें जरूरी है अगर मैग्नीशियम के एलिमेंट को हमें जलाना है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है जो कि एक वाइट डाइजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। नाउ हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, बट बिफोर हाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, व्हाई ए केमिकल बैलेंसिंग इज रिक्वायर्ड, व्हाई इट इज नीडेड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। हमारे पास क्या जरूरत है कि एक केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करें, उसको संतुलित करें। किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की क्या जरूरत होती है? दैट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। देखिए, वी हैव मैग्नीशियम हैविंग द एटॉमिक मास 24 ग्राम, ऑक्सीजन हैविंग द एटॉमिक मास, ऑक्सीजन गैस will show 32 ग्राम। टोटल मास इन दोनों का मिला के हो गया आपके पास 56 ग्राम। इसका एटॉमिक मास हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में कि किस तरह से इनका एटॉमिक मास कितना कितना होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अब अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में बात करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में Mg का यहां पे 24 और अकेले एक ऑक्सीजन का है 16, सो वी हैव इक्वल टू 40 ग्राम। तो क्या दोनों तरफ मास जो है आपका वो टोटल बराबर हो गए? That is 56 gram and that is 40 gram. It means mass is destroyed, but that is against the law of conservation of mass. द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि द्रव्यमान किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परिवर्तित नहीं होता है, ना तो वो घटता है ना बढ़ता है, वो संरक्षित रहता है। दैट इज अबाउट द्रव्यमान का संरक्षण का नियम, और इंग्लिश में कहते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास इट सेड दैट during a chemical reaction mass remains conserved, mass can neither be created nor it can be destroyed. So that is about a balanced chemical equation. Balanced chemical equation is what? Which has equal number of atoms on both sides. And why we balance an equation? To equalize atoms on both sides according to law of conservation of mass. Conservation of mass क्या कहता है? Mass can neither be created nor it can be destroyed. इसीलिए हमने दोनों साइड के एटम्स को बैलेंस करना जरूरी होता है। Now how we can balance this chemical equation? इस केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हम पहले इसे नहीं करेंगे बल्कि मैं एक आपके सामने एक एग्जांपल लेने जा रहा हूं, दैट इज जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। व्हेन वी रिएक्ट जिंक, हमने इसका एग्जांपल पहले ही दे रखा है, जिंक व्हेन वी रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज विल फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक ब्लॉक्स, विल मेक सम बॉक्स ऑल अराउंड इट। ये बॉक्स का पर्पज ये है बनाने का कि ताकि इनके अंदर इंटीजर ना डाले, कोई नंबर ना डाले बैलेंसिंग के दौरान, क्योंकि ऐसा करेंगे तो फॉर्मूला ही बदल जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, व्हाट इज आवर सेकंड स्टेप, दैट इज ड्रॉ दिस टेबल इन विच विल राइट एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड। एलिमेंट कौन कौन से हमारे पास, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। लेफ्ट हैंड साइड देखिए जिंक कितना है 1 राइट हैंड साइड जिंक कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है लेफ्ट हैंड साइड 2, हाइड्रोजन कितना है 2, सल्फर कितना है 1, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 4, ऑक्सीजन कितना है 4। Now you can check it finally, both sides are showing balanced sides, दोनों की दोनों साइड्स अपने आप ही पहले से ही बैलेंस है। So we'll write here equation is already balanced, यह रासायनिक अभिक्रिया पहले से ही संतुलित है। इस तरह का अगर उदाहरण हमारे सामने आता है जो पहले से ही आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड होती है, उसके केस में हम ये टेबल बनाएंगे और एट लास्ट हम लिखेंगे इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों साइड के एटम्स बराबर हैं। लेकिन अगर हमारे पास बैलेंस ना हो तो कैसे किया जाए,
we have iron reacted with steam H2O, it will form Fe3O4 and release of hydrogen gas will occur. Now we'll balance it. First of all we make box all around it, ताकि इनके अंदर हम कोई भी वैल्यू ना पुट करें, क्योंकि अगर इनके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, वो मॉलिक्यूल वो नहीं रहेगा। इसलिए जो भी हम टेबल बनाने जा रहे हैं और उसका जो भी इंटीजर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां रखेंगे बाहर। सो वी राइट एलिमेंट एंड दीज आर एलिमेंट Fe, H hydrogen, O oxygen. And on left hand side we have Fe equal to 1, on right hand side Fe is 3, on left hand side hydrogen that is equal to 2 and hydrogen equal to 2, oxygen equal to 1, oxygen equal to 4. तो इसका मतलब हम देखते हैं इस इक्वेशन में हमारे पास दोनों तरफ बैलेंसिंग नहीं है, 1 3 2 2 1 4, ये पूरी तरह बैलेंस नहीं है। सो वी विल बैलेंस इट। कैसे बैलेंस करेंगे इसे हम? ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, जो चीज आपकी ज्यादा नजर आ रही है उसको बैलेंस कीजिए। सबसे पहले 4 था यहाँ पे, तो इसको 4 बनाया जाए, विल मल्टीप्लाई इट विद 4, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमें कितना रखना पड़ेगा 4, ताकि ऑक्सीजन कितने हो जाए 4। लेकिन ऑक्सीजन तो 4 हो गए, लेकिन उसके साथ आपके हाइड्रोजन कितने हो गए 4 2 जा 8। लेफ्ट हैंड साइड आपके हाइड्रोजन भी तो अपने आप ही कितने हो गए 4, क्योंकि 4 ना सिर्फ ऑक्सीजन के लिए बल्कि हाइड्रोजन के लिए भी है, तो 4 2 जा 8। लेकिन यहां पे हाइड्रोजन अभी भी कितने हैं 2, तो इसको हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 4, तो ये हम यहां पे रख देंगे 4। यहां पे हम 4 रिप्रेजेंट कर देंगे और हाइड्रोजन आपके यहां पे कितने हो गए 8, दोनों साइड हाइड्रोजन 8 हो गए। नाउ वी हैव लास्ट एलिमेंट दैट इज आयरन। आयरन ऑन लेफ्ट हैंड साइड दैट इज 1 एंड दैट इज 3। यहां पे 3 है लेकिन यहां पे 1 है, इसको हम कितने से मल्टीप्लाई करें 3 से। जितना नंबर यहां मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं वहीं पे इतना ही नंबर रखेंगे हम। तो फाइनली विल चेक आयरन 3 ऑन बोथ साइड, 3 ऑन बोथ साइड, हाइड्रोजन 4 दैट इज 8 ऑन बोथ साइड, 4 2 जा 8 एंड 4 2 जा 8 ऑन बोथ साइड। ऑक्सीजन 4 ऑन बोथ साइड, ऑक्सीजन इज आल्सो 4। तो हम देखते हैं दोनों साइड आपकी बैलेंस हो चुकी है। दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लाइकवाइज आपने जो स्टार्टिंग में लिया था मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को बैलेंस करने का, तो जैसा कि बताया कि यहां पे हमारे पास ये 56 ग्राम हो रहा है और ये 40 ग्राम है, इट्स नॉट बैलेंस्ड। तो हम बैलेंस करने के लिए यहां पे क्या करेंगे, यहां पे Mg1 है, Mg1 के O आपके 2 है, O आपका 1 है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। ऐसा करने से O तो 2 हो गया, लेकिन मैग्नीशियम Mg 2 हो गया अपने आप, तो इसलिए यहां कितना रख देंगे 2 रख देंगे। अब देखिए, अब मैग्नीशियम Mg भी 2, Mg भी 2, O भी 2, O भी 2, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे Mg के सामने 2 लगाया तो यहाँ पे 2 लगा दिया, तो ये कितना हो गया 48 ग्राम, और 48 ग्राम और ये आपका कितना था 32 ग्राम, तो 48 और 32 ग्राम मिलके अब कितना हो जाएगा आपका, इट विल बिकम 80 ग्राम। ये 56 नहीं रहेगा, ये कितना हो जाएगा 80 ग्राम। लाइकवाइज हमने 2 यहां पे रखा है, तो हम डायरेक्टली इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब 2 into 40 दैट इज इक्वल टू 80 ग्राम। तो दोनों साइड मास आपका बराबर हो गया है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास कहता है कि दोनों साइड जो मास है वो सेम रहना चाहिए, इसलिए हमने दोनों साइड के एटम्स को बैलेंस किया। टू इक्वलाइज बोथ साइड एटम्स we will balance this equation. Now we have another question in our question bank, that is balancing of barium chloride with after reaction with alum sulfate. We will write barium chloride BaCl2, alum sulfate Al2SO4, Al2SO4 thrice। इनके फॉर्मूले हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, कैसे बनाए जाते हैं, उनकी वैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके। Al2SO4 thrice, barium sulfate BaSO4, alum chloride AlCl3। Now I make our table, element left hand side, right hand side। एलिमेंट कौन कौन से हमारे पास, बेरियम, क्लोरीन, एल्यूमिनियम, सल्फर, ऑक्सीजन, हो गए हमारे सारे। दीज आर 5 एलिमेंट्स। ऑन लेफ्ट हैंड साइड बेरियम कितना है आपका 1, राइट हैंड साइड बेरियम 1, क्लोरीन कितना है 2 है, और क्लोरीन इस तरफ भी हमारा इस तरफ 3 है। एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 1, सल्फर 3, सल्फर
1, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन के नीचे 4 है, तो ऑक्सीजन इस तरफ कितना होगा 4 3 जा 12, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई कर देना है जितना ब्रैकेट के बाहर है, 4 3 जा 12, हियर ऑक्सीजन इज 4। अब देखिएगा अब यहाँ पे कौन सी चीज बैलेंस नहीं है, और सबसे ज्यादा नंबर किसका है, ऑक्सीजन का, जो कि 12 है, 12 है, इसको हम कितने मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, और उतना ही नंबर हम यहाँ पे लगा देंगे, कितना लगा दें, ऑक्सीजन यहाँ पे आपका 4 है, इसके आगे लगा दें 3। बॉक्स बना सकते हो, लेकिन अगर बॉक्स ना भी बनाओ और बैलेंसिंग ऐसे भी कर दो तो वो भी मानी जाएगी आपकी। बॉक्स आपकी सहूलियत के लिए, ताकि आप नंबर को बीच में ना डालो, इस नंबर को बीच में ना डालो, इसलिए हमने यहाँ पे नंबर लगाया। लेकिन अगर आपने यहाँ नंबर लगा बैलेंस कर रखा है तो वो भी ठीक है। तो आप देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया 3 4 जा 12, लेकिन ऐसा करने से बेरियम भी 3 हो गया और सल्फर भी 3 हो गया, इसलिए हम राइट हैंड साइड में बेरियम को भी 3 कर देंगे, मल्टीप्लाई विद 3, और सल्फर भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट हैंड साइड है ना हमारा, तो इसलिए राइट हैंड साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए आपका ऑक्सीजन 12 हो चुका है दोनों साइड। नाउ वी मूव टू द सल्फर। सल्फर देखिए आपका 3, सल्फर कितना है 3, ये भी बैलेंस। एल्यूमिनियम देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आपका एल्यूमिनियम 2 है, लेकिन यहाँ पे एल्यूमिनियम 1 है, इसको हम कितने मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 2 रख दिया। लेकिन ऐसा करने से क्लोरीन भी कितना हो गया 2 3 जा 6, राइट हैंड साइड 2 3 जा 6, और इस तरफ देखिए क्लोरीन आपका कितना है सिर्फ 2 है, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करें 3 से, इसलिए इसको हमने कितना रख दिया 3, इसको 3 रख दिया, तो ये तो 6 हो गया क्लोरीन, लेकिन आपका बेरियम कितना हो गया 3, और बेरियम आपका 3 यहाँ पे तो पहले से, इसको हमने कितने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, क्योंकि ये 3 आपका सिर्फ क्लोरीन के आगे नहीं है बल्कि बेरियम के लिए, इसलिए हमने यहाँ पे 3 रखा। अब देखिए फाइनली आपका दोनों साइड बराबर है, बेरियम 3, क्लोरीन 6, क्लोरीन 6, एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2, सल्फर 3, ऑक्सीजन 12। This is the method of balancing which is studied in your class 10 and it is known as hit and trial method. हिट करो, दूसरी साइड देखो क्या बैलेंस हुई, ट्रायल करके देखो, फिर दोबारा हिट करो, अब देखो क्या बैलेंस हुई। हम बैलेंस करते गए हैं जब तक दोनों साइड बैलेंस नहीं हो गई हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे भी देखा था कि आपके पास पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 4 लगाया था हमने, लेकिन ऐसा करने से ये बैलेंस नहीं रहा, हाइड्रोजन आपका 8 हो गया, इसलिए 4 लगा दिया। दोनों साइड हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, लेकिन आयरन आपका 3 था और आयरन यहाँ पे 1 था, तो इसके आगे 3 लगा दिया। दोनों साइड से बैलेंस करते चले, हिट एंड ट्रायल, जब तक पूरी तरह से दोनों साइड बैलेंस ना हो जाए। व्हाट इज द एम? टू इक्वलाइज एटम्स ऑन बोथ साइड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। Mass can neither be created nor it can be destroyed. Mass remains conserved. So, message for today's topic is balance your passions. There is no need to balance your time. Good luck. All the best to all of you learners.